So in today's lecture, what I'm going to do, I'm going to uh, give you some background about sets and functions that we will require in throughout our chapters. So I will begin with some notations for that we use for the sets. Hello, sir. Hello. Good morning, sir. Hello. So okay, let me write in now the what are De Morgan's laws. De Morgan laws. First thing is if you have three sets, CB three sets, if you have three sets, then it says that the difference of A from with B union C is can be obtained in this way by taking the difference of A and B, and then you taking union of this with the difference of A with C. Not union, here it has to be intersection. This is what De Morgan laws does. It converts union into intersection, and intersection into union. And similarly, if you have A minus B intersection C, then that will be equal to A minus B union A intersect A minus C. So these are the De Morgan's law that you have been through, but you have to remind it here. And similarly, if you have more than one, let us consider now the situation where you have more than one sets. For example, let you have sets, finite number of sets A1, A2, so on up to n number of sets. Then how you define their union and their intersection? Their union can be defined in the similar lines. And notation, you may write notation as j from 1 to n. You take aj, and how it is defined? It is defined as set of all those points that x belongs to aj for some j. And similarly, you define the intersection j from 1 to n, aj. You have to take all the common elements that are common to all the sets. X belongs to aj for all j. This is the case where you have when you have finite number of sets, and you can define union of finite number of sets and finite number intersection of finite number of sets. And similarly, this can be extended to the case where you have infinite number of sets. For example, let you have infinite number of sets a1, a2, a3, so on b sets. You have infinite number of sets, then you define infinite union of these sets. यूनियन ऐसे ही डिफाइन होगा, कोई इशू नहीं उसमें, बस आपकी नोटेशंस थोड़ी सी चेंज होती है क्योंकि आप n from 1 to infinity सारे सेट्स का यूनियन लेंगे. And how you define it as similarly extend होगा कि x such that x belongs to an for some n. And how do you define intersection? Intersection is n from 1 to infinity an. It is set of all those elements x belongs to an, but here it has to be for all n. तो ये नोटेशंस हम यूज करेंगे. इस तरीके से आपको इंटरसेक्शन और यूनियन हम डिफाइन करेंगे जी. तो अगर अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन.
सर डी मॉर्गन लॉ के बारे में नहीं पता तुम्हें? Okay, let me go back. Here it is De Morgan law. अब देखिए, it is A minus B union C. वो यूनियन का क्या बन रहा है, माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, A माइनस बी सेपरेटली हो रहा है, बट यूनियन का इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो रहा है और A माइनस सी हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकंड में आपके पास, जब आपके पास A माइनस बी इंटरसेक्शन C है, तो माइनस आपके पास B के साथ भी सेपरेटली अप्लाई होगा और सी के साथ भी अप्लाई होगा, बस इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस सी। अब वेन डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, जो मैं पहले कर रहा था, स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई वहां पर, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। यू कैन ट्राई दीज, जैसे आप ट्राई कर सकते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक पर भी आपके पास ये एक्सप्लेन्ड है चीजें। मुझे जस्ट फॉर रिकॉर्ड आई हैव टू कीप दीज थिंग्स मेंशन टू यू, सो दैट जब हम इन्हें आगे यूज करें तो आपके दिमाग में हो कि हाँ ये कुछ एग्जिस्ट करता है। बट वी कैन डिस्कस, नहीं आ रहा होगा तो आई विल डिस्कस इट विद यू, नो इशू। बट नाउ लेट मी डिफाइन एन इम्पोर्टेंट थिंग। फंक्शन क्या होता है जी? व्हाट इज अ फंक्शन? आप में से कोई बोल सकता है मुझे? फंक्शंस पढ़े हैं ना आपने? हाँ सर, फंक्शन में थोड़ा, सिर्फ एक ही इमेज होती है सर उसमें। हाँ इमेज होती है। फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। Function is always defined between two sets. Suppose you have two sets, let A and B be two sets. Then a function f से मैं function का नाम रखता हूँ, f is a map, is a rule of correspondence. I will call it is a rule of correspondence from A to B, in which each element x in A has, we call it as say it as in for correspondence from A to B, in which each element x is assigned to a unique element उस एलिमेंट जिस डिनोट करता हूं मैं, यूनिक एलिमेंट ऑफ पी, ये आपके पास है जी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो कुछ भी एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है, से ही आपके पास एक सेट दूसरा कोई बी है। रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब यू हैव अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस सेट ए, डायरेक्शन भी मैटर कर रही है, फ्रॉम ए टू बी है। आई एम नॉट, व्हाट इट इज डूइंग दैट इफ यू चूज ए के अंदर कोई भी एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा आपको बी में, को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। और कंडीशन क्या है कि ए के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट वहां होना चाहिए। यहाँ कोई टी होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ कोई टी होना चाहिए। के ऊपर कुछ कंडीशंस नहीं है, कंडीशन सारी की सारी ए के ऊपर है। एक एलिमेंट ये लिखा हुआ है ना कि इन विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन ए ऑफ एक्स इन बी। अब क्वेश्चन ये होता है कि बी के अंदर सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तुमने किसी को असाइन किया एक एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा किसी एलिमेंट के साथ। बी एसोसिएटेड है, एक्स को असाइन किया गया एफ ऑफ एक्स नाउन एज इमेज ऑफ एक्स, एंड सिमिलरली टी के लिए टी को असाइन किया गया एफ ऑफ टी, तो टी एफ ऑफ टी इज नाउन एज इमेज ऑफ
t अंडर f, ठीक है। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं f of t इज अ वैल्यू value of t or value of f of t. Yeah, better way to say is that this is the image of f under t. This is A, in which every element is assigned to some element in B. This is domain of f. इसको हम बोलते हैं डोमेन रखते हैं। यूजुअली इसकी नोटेशन हम r of f रखते हैं। तो अब दूसरी बात ये है कि f एलिमेंट्स हैं जो 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 है, जैसे ये इस तरीके से लिखता हूं मैं, ये एक सेट बनाता हूं आर ऑफ एफ में मैं वो सारे एलिमेंट्स रखूं विच आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए, ठीक है। एक एलिमेंट के जितने एक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की इमेजेस के सेट को आर ऑफ एफ से हम डिनोट करते हैं। सेट इज नाउन एज रेंज ऑफ एफ, ठीक है। और यूजुअली यू कैन सी रेंज किसका सबसेट है, कैन एनीवन टेल मी? ये ए का सबसेट? हाँ सर, ए का सबसेट है, ए का है, और कोई? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे ना। सर नहीं, आपका सर फंक्शन, हाँ जी, सर और बी कोई का बोल रहा था। यस एग्जैक्टली, इट इज अ बी का सबसेट। सोचिए क्यों है बी का? वेरी गुड। क्योंकि सर उसके एक एक एफ ऑफ एक्स हैं इसके अंदर एलिमेंट्स। एफ ऑफ एक्स कहाँ थे? क्या बी एक्स बी का एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट। ओके, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ये रेंज आ गया आपके पास फंक्शन का जी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो अब हम कुछ इमेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन ए टू बी है, तो आप मानते हैं कि यू हैव अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए बी अ फंक्शन, ये नोटेशन है फंक्शन की हम रखेंगे यूजुअली, बी अ फंक्शन, ठीक है। एंड लेट अस टेक ई में सबसेट ले रहा हूँ ए का, ध्यान दीजिए ई में ए का सबसेट बी का ले रहा हूँ, ठीक है। ई की of E will be known as direct image of E. Direct image of E under F. ये कि E के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की इमेजेस ले लीजिएगा इसमें। F of X is an E of which that X अगर वेन डायग्राम से अगर आप देखना फर्स्ट एंड दिस इज फंक्शन बी। ये आप क्या कर रहे हैं, एक सेट पर और F of E है, F of E आपके पास B का सबसेट है। नोट दैट इट इज नाउ सबसेट ऑफ B। तो कोई यहाँ पर हो सकता है, दिस कैन बी समथिंग, तो हो सकती है ई हियर सम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इमेज ई की। लेकिन ई किसके? बैकवर्ड इमेज ऑफ एच का नोटेशन ये रखेंगे हम, ये नोटेशन एफ इनवर्स पढ़ेंगे इसको ऑफ एच। हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन? आपके पास बी यहाँ पर है, आपके पास ए है,
आपके पास फंक्शन डिफाइंड है ए से बी तक, डायरेक्शन फंक्शन की ए से बी तक है, तो एच सबसेट जो है, एच सबसेट आपने लिया है बी का, तो मैं इसकी बैकवर्ड इमेज डिफाइन कर रहा हूँ। दैट मीन्स एच यहाँ पर है, तो एच के कारस्पॉन्डिंग कुछ मुझे ए में डिफाइन करना है, डायरेक्शन बैकवर्ड में करना है। सो व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एच, कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट के पास, यू हैव सी कि क्या y किसी का इमेज बनता है या नहीं बनता। दो सिचुएशंस है, या तो y किसी का इमेज बनेगा, फॉर एग्जांपल x कोई यहाँ पर है, तो x का इमेज यहाँ बनेगा, तो ये x इसमें रखेंगे हम, वो x एक एलिमेंट्स जिनकी इमेज जो है वो h के अंदर है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज बैकवर्ड इमेज, इट्स अ सबसेट ऑफ द डोमेन, it consists of those elements of A whose image is in H। तो कभी कभी H में ऐसा भी हो सकता है कि H में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई भी इमेज ना हो। एग्जाम्पल आपके पास, लेट मी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, लेट मी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर तक मैं एक फंक्शन लेता हूं, डिफाइंड एज एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर है जी ये, ठीक है। तो अब मैं एच में ले और एक ही एलिमेंट ले लेता हूँ -2, ठीक है, एक -2 ले लेता हूँ, दो एलिमेंट लेते हैं इसमें, ये चलो एक ही एलिमेंट रख पहले, फिर दूसरा ये h1 रखते हैं। अब इस केस में लेट अस फाइंड व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ एच। कोई मुझे बता सकता है एफ इनवर्स ऑफ एच क्या आएगा, h1 क्या आएगा? डेफिनेशन क्या कहती है, सेट अप दोज नंबर्स जिनका इमेज एच में हो, है ना, सर ठीक है। अब एफ की डेफिनेशन भी हमारे पास है, तो ये कहता है सेट ऑफ दोज रियल नंबर स्क्वायर आपके पास एच में बिलोंग करे, h1 में। तो इसका मतलब अभी फिलहाल तो दैट मीन्स ऑल ऑफ हुज स्क्वायर एच बिलोंग करना मतलब -2, तो क्या ये लॉजिक बन? नो सर, सर रिपीट कर दो। सर आपकी आवाज कट रही है सर बार आपकी बार। आवाज कट रही है सर। नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये सेट क्या होगा, इसमें कुछ भी इस एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज कट रही है बीच खाली में। है आ रहा है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्स नहीं है, तो खाली सेट को क्या बोलते? हाँ जी, सर आपकी आवाज कट रही है अभी बीच आ में। रही है क्लियर? हाँ अभी क्लियर है, पर पहले बीच में बड़ी हेलो, बार कट रही है। सही हाँ रिपीट सर कर दो। बीच में बड़ी बार कट रही है। ठीक है, ठीक, कोई शायद नेट, कल नेटवर्क, कोई बच्चे कोई बात नहीं, मैं रहता है ना, तो फिर मैं कैसा आदमी लाइक कि ये सेट क्या होगा, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई एलिमेंट ऑफ h1 बनाया, सर आपकी आवाज ही कट गई। इसमें कोई एलिमेंट होगा इस सेट में जो मैंने बनाया ना, एफ नो इनवर्स ऑफ सर, h1, तो दैट मीन्स एम्प्टी सेट के लिए नोटेशन होती है ये, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस यू कैन फाइंड अदर आप बना सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स के
कर सकते हैं. इट इज अ गुड एक्सपेक्ट बिग है, जिससे वो है हमारे पास बाइजेक्शन क्या होता है. बाइजेक्शन क्या होता है कि लेट f from a to b be a function then f is said to be a bijection. It is said to be a bijection if number one, f is 1 1, and number two is that f is onto. फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं या इंजेक्टिव मैप भी बोला जाता है. या सर्जेक्टिव मैप भी बोलते हैं. 1 1 फंक्शन क्या होता है? डू एनीवन ऑफ यू नो? सर जिसमें हर एक डोमेन में जिन जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी एक इमेज हो, यूनिक इमेज हो. यूनिक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं करता हूँ कि 1 1 होने की इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने पीछे ये स्क्वायर फंक्शन लिया, इस फंक्शन को देखो ना, स्क्वायर फंक्शन लिया तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है r से r तक. क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ 1 की इमेज और f ऑफ -1 की इमेज सेम आ रही है. यस सर. दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन के डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, दैट इज अगर एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. सर बीच में बहुत आवाज कट रही है आपकी. मैं इसको देखो, रिकॉर्डेड में भी आपको मिलेगा. और दोस्तों ये भी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर. यस सर. स्क्रीन विजिबल है. बट आई विल ट्राई के मैं वाईफाई तो इक्विवेलेंटली आप इस तरीके से भी बोल सकते हो. आप करें तो वो कहता है कि अगर जब इमेजेस सेम है, fx इज इक्वल टू fx1 इक्वल टू x2 है, तो दिस मस्ट इम्प्लाई के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. ठीक है, ये 1 1 फंक्शन है. तो ऑन2 फंक्शन क्या होता है? ऑन2 फंक्शन होता है कि अरे के अंदर हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. इस तरीके से इफ एलिमेंट y in B is an element x in A, image of x f is y. ये ऑन2 सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. है. तो जो फंक्शन 1 1 है और ऑन2 भी है, उस फंक्शन को आपको एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं. एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर जो है ये नॉट ऑन है. फॉर एग्जांपल by it and onto, then a function g defined from B to defined as g of y equals to x only if
f of x is equal to y. This function is known as inverse f and is usually denoted by ये नोटेशन है इसका। तो फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो सिर्फ बाइजेक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपके पास 1 1 ना हो तो उसका भी मिलेगा, जो अनटू नहीं है उसका भी इनवर्स नहीं मिलेगा जी।